Hello and welcome to a very special show from the Namo Ghat in Varanasi. I am Devika Chopra reporting for NewsX. Remember, the Prime Minister will be in Varanasi on the 13th of May for a roadshow. He will be filing his nomination on the 14th of May. But what really has been the transformation that India's oldest living city has witnessed? I have with me people from all walks of life, business owners and residents of Varanasi for this special show, who will tell us from their perspective what is it that they feel about Kashi. Let me begin the show. I have with me Mr. Gauri Shankar with us. Gauri Shankar ji, I just want to understand from you, how long, sir, have you lived in Varanasi, and what do you think has been the biggest transformation of Varanasi? जैसा कि बनारस में हम लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में एक साड़ी का शोरूम खोला और वहाँ पर आए हुए टूरिस्ट को, जितने भी टूरिस्ट अभी तक साड़ियाँ खरीदते हैं यहाँ पे, वो लाइव साड़ी बनते हुए नहीं देख पाते हैं, तो उसका एक म्यूज़ियम हम लोगों ने बनाया जहाँ लाइव साड़ी बना रहे हैं। और काशी विश्वनाथ मंदिर बनने से जो वहाँ का बड़ा प्रकार बना, उस प्रकार से हम लोगों को साड़ी का व्यापार करने में बहुत ही लाभ मिल रहा है। और बनारस में आए टूरिस्ट जो भी आते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा की यात्रा और दर्शन, उसके बाद वो एक शॉपिंग के रूप में साड़ी खरीदना उचित समझते हैं, क्योंकि यहाँ की फेमस साड़ी बहुत प्रकार से फेमस है, विश्वविख्यात है। हम लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ बनारस में और भी जगह शोरूम खोले, जिससे हम लोगों को काशी विश्वनाथ मंदिर के बाबा भोलेनाथ की कृपा से व्यापार और बनारस के आए टूरिस्ट से बहुत व्यापार मिला जी, जो एकदम अलग है। हमारे साथ we also have with us Rohit Pathak ji, who's a restaurant owner in Varanasi. Rohit ji, I just want to understand from you, how long have you lived in Varanasi, and what do you feel has been the biggest transformation here? Good evening, everyone. I am born and brought up in Varanasi. Since birth, I am living in Varanasi, and in this 10 years, past 10 years, I have seen Varanasi a big transformation. From, you can imagine, the roads was full of the patches and जिसको गड्ढे कह सकते हैं अपने, और I can say that everyone is able to earn his bread and butter in Varanasi. You can see when you have arrived the ghat, many of food stalls, someone is making the cart, someone is selling balloons. It is like a tourist place. This ghat was, this example where we are standing and doing this program, this ghat was the worst ghat. No one was coming to here, and now this is the most live ghat of the Varanasi in this 10 years. That's a good perspective. I want to take that forward with Mr. Janendra Rai, who's a local tourist guide and also owns a homestay in Varanasi. Janendra ji, if you can just inform our viewers from a tourism perspective, as Mr. Pathak was pointing out, that earlier the ghat was not as much visited, but today we see hundreds of people on a daily basis at all the ghats of Varanasi. What has been the biggest transformation, sir? Well, myself, Janendra Kumar Rai, President Tourist Guide Association Varanasi. Being a tour guide, we are those people who spend maximum time with the tourists, foreigners or Indians. And now, just now you have told the changes happening in Varanasi. Just giving you example on the spot where we are standing. A very good example is Namo Ghat. Used to be like a deserted area with no steps, all muddy, and nobody hardly dare to come to this area. This could be the best example that now overcrowded by people, and this is not because today is Sunday, it's almost every day. So my point is that starting from the northern end of the Ghats, which is Adi Kesav, and going all the way to Assi Ghat, and even beyond Assi Ghat, Samne Ghat, etc. So many things, I mean, it would be like, it will take quite a long time to count them in terms of the cruises. I'm talking on behalf of tourism because I'm from tourism fraternity. Yes. In terms of the cruises launched on Ganges River, one by one, many. Earlier used to be just a traditional format of boats. I agree with that formats, but during summer, during adverse weather conditions, used to be problem, especially for those who are coming from foreign countries. Yes. Now we have a complete product as air-conditioned boats running on Ganges River. Earlier used to be problem to access, even drive to the ghats. Hardly, if you are driving to Assi Ghat, you will have to go through all the way the entire traffic jams of Varanasi. Now you have Namo Ghat and you can directly drive. You have very well organized parking system. Yes, in fact, if you can tell our viewers a little about this beautiful bridge that we see right behind us as well. And the bridge
Well, that credit goes long ago. It was built in 1887 during British But the period maintenance time. of it, yes. But the maintain has been done because in the past few years, like 10 years back, Right. it was in a very bad condition. A lot of renovation has done, and now you can see the traffic is going on smoothly. Yes. And the last one is the first floating CNG station in the world is right behind you. So there are plenty of examples. That is why I said the list is so long, it will take a lot of time to tell about all of them. Absolutely. And at the center of this is, of course, the transformation that has been brought in by the Kashi Vishwanath Corridor, which is a very personal project of Prime Minister Modi. Also joining us for this broadcast is Dhananjay ji, who is a priest at the Kashi Vishwanath Mandir. Dhananjay ji, आपसे समझना चाहेंगे कि कॉरिडोर बनने से पहले कितने लोग आ पाते थे और अब कॉरिडोर बनने के बाद आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, क्या बदला है कॉरिडोर से? नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जिस शहर का नाम बनारस है, जिस कणकण में बसते पारस है, उस शहर का नाम बनारस है। हम काशी में बसते हैं और काशी में पहले जिस दर्शनार्थी आते थे दर्शन करने पूजन करने, वो लगभग 10,000 20,000 आते थे। अब लाखों में भीड़ आती है। और दर्शन का ये सिस्टम है कि आप सिस्टमेटिक दर्शन करते हैं, सुगम दर्शन है और नियमित दर्शनार्थी हैं। और आपके 4 गेट है, चारों गेटों से प्रॉपर प्रशासन और विधिवत आपको दर्शन कराती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अभी हमारे नगर आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं मोहित अग्रवाल जी, उन्होंने आदेश किया किसी भी दर्शनार्थी को टच नहीं करना है, उसको परेशान नहीं करना, आराम से दर्शन करने देना है। और जो हमारी परंपरा है, धोती कुर्ता में जो भी प्रशासन के वहाँ जो सुरक्षा कर्मी लगेंगे वो धोती कुर्ता में रहेंगे और किसी भी दर्शनार्थी को परेशान नहीं करेंगे, उनको आराम से दर्शन करने देंगे और आराम से दर्शन करके वो अपनी मनोकामनाओं को प्राप्त करते हैं। बाबा विश्वनाथ से कामना करते हैं कि जो हम काशी में आते हैं, काशी इस धरती पे नहीं है, तीनों भुवनों पे, इस धरती पे नहीं है, बाबा के त्रिशूल पे बसी काशी है। तो जो भी दर्शनार्थी यहाँ आ रहे हैं, बाबा की खूब आशीर्वाद ले रहे हैं और खूब बाबा की कृपा बरस रही है। कॉरिडोर जब से बना है भीड़ अपरंपार बढ़ रही है, उससे व्यापार बढ़ रहा है और इस काशी का, पूरे भारत का, विश्व का जो है नाम रोशन हो रहा है। काशी को इस विश्व पटल पे देखा जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का असीम बाबा के ऊपर कृपा है। और पुनः वह इस सत्र में जो संसदीय क्षेत्र है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है वाराणसी, वह फिर पुनः इस बार नामांकन करेंगे और इस विश्व पटल पे इस वाराणसी को आगे बढ़ाएंगे। और यही कहा जाता है कि वाराणसी के लोगों पर बाबा का आशीर्वाद है, इसीलिए बाबा की जो पावर है, एनर्जी है, वो काशी में है। धनुका जी, आपसे पूछना चाहूँगी मैं that how has the Kashi Vishwanath corridor and the impact on tourism has been explained by Mr. Janendra Rai. How has that impacted your business, sir? Have you seen an increase also in opportunities that you can venture away from other businesses? और भी आपको opportunities दिखती हैं कि हाँ अब क्योंकि टूरिस्ट ज़्यादा है तो ये बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, मल्टीपल बिजनेसेस हम ओन कर सकते हैं वाराणसी में? एकदम सही आपने पूछा। हम लोगों ने सबसे पहला स्टोर कॉरिडोर में खोला था, टूरिस्ट को देखते हुए कि वहाँ पे हमको अच्छे टूरिस्ट मिलेंगे। उसके बाद बनारस एयरपोर्ट अंदर हम लोगों ने शोरूम खोला एयरपोर्ट के अंदर, वहाँ पे भी बहुत अच्छा मिला। और हम लोग रोज़ सोचते हैं कि बनारस में आए हुए टूरिस्ट को कोई परेशानी नहीं हो, उनको हर जगह मंदिर में आए तो मंदिर में ही उनको जो भी चीज़ें बनारस की फेमस चीज़ें वो उनको दे जाए। तो रोज़ दिमाग में कुछ ना कुछ नए व्यापार की लेकर बात चालू होती है। और बहुत अच्छी बात है कि बनारस में टूरिस्ट के कारण बहुत अच्छा बिजनेस बनारस में है और टूरिस्ट के कारण हम लोगों को यहाँ के जितने भी रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, बिजनेस हैं और मंदिर, ये चारों चीज़ों में बहुत बढ़ोतरी है जिसका बहुत अच्छा हम लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। तो आपने कहा साड़ियों का बिजनेस था और अब और बिजनेस शुरू कर लिए हैं आपने, थोड़ा उनके बारे में बताइए कि क्या इम्पैक्ट रहा है? साड़ियों के बिज़नेस के साथ साथ हम लोगों ने बनारस की जो सबसे फेमस चीज़ है, आलू के पापड़, लाल मिर्च के अचार, ये सब जो बनारस की जो अभी उन्होंने मोदी जी ने अचार को उन्होंने एक बनारस में मोनोपोली दे दिया है ब्रांड। और इस तरह से हम लोगों ने फूडिंग के कम से कम बनारस में 26 स्टोर हम लोगों ने छोटे छोटे चालू किए, जो बनारस की प्रदर्शित, हमारा बनारस एयरपोर्ट पे भी 2 काउंटर अलग से हम लोगों ने अचार, पापड़, सुपारी, पाचक, बनारस की जो फेमस चीज़ें उसको चालू किए। उसको धीरे धीरे करके हम लोगों ने 26 स्टोर पे इस समय हमारा काउंटर है धानुका का, जो फूडिंग को लेकर
करके जो बनारस की प्रसिद्ध चीज़ें हैं, जो सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट के कारण हमको बेनिफिट मिल रहा है, अन्यथा नहीं मिल पाता। तो धनुका जी, हाउ मेनी पीपल डू यू एम्प्लॉय सर? आपके अंडर आप कह रहे हैं बिजनेस बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली आपने भी अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है बनारस के लोगों के लिए। कितने लोग लगभग आपके अंडर काम करते हैं अब? अभी हम लोग के अंडर में करीब 400 पीपल्स काम करते Wow. हैं, जिनको पहले हमारे यहाँ केवल 25 to 30 लोग थे, जो इधर 5 इयर्स मैक्सिमम 5 इयर्स में मतलब 25 से सीधे 400 स्टाफ हो गए, जिनके कारण ये संभव हो पा रहा है। From 25, the employees today at one business owners ventures in Varanasi are at 400. That is very telling of the transformation that has been brought in by the simple developmental changes that have been made and the focus on development. I want to take the same question with Mr. Rohit Pathak, who's a restaurant owner. Pathak ji, if you can tell our viewers, how has the Kashi corridor and all the development that has come with it impacted your business, sir? फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई स्पीक इन हिंदी? जी जी जी। क्योंकि ये काशी की जनता है, हमको लगता है कि ये हिंदी में ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो जैसा कि आपका प्रश्न है कि बनारस में कितने लोगों को रोज़गार, और एक बार मैं फिर पूछूं, आपका प्रश्न यही था ना कि कितने लोगों को इम्पैक्ट किया है एम्प्लॉयमेंट आपके में? बिजनेस स्पेसिफिकली को क्या इम्पैक्ट हुआ है काशी कॉरिडोर से? काशी कॉरिडोर से हमारे बिजनेस को ये इम्पैक्ट हुआ है कि हमारा जो रेस्टोरेंट है वो ऑलरेडी 1975 से रन कर रहे हैं हम लोग। वाह। और हम लोग अभी एक्सपेंशन की तरफ हैं कि बनारस में हम लोग नई जगह खोज रहे हैं और 5 रेस्टोरेंट एक्सपेंड करेंगे। और उसके बाद हम लोग आपको बताएं कि बनारस में पूरे इंडिया के जितने भी कुजीन्स हैं, सारी कुजीन्स के जो शेफ्स हैं वो अपने आप अप्रोच करते हैं कि मुझे बनारस में आके व्यापार करना है और काम करना है, क्योंकि उनको यहाँ पे सैलरी, वेजेस और फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है। और बनारस में आने वाले जो दर्शनार्थी हैं, टूरिस्ट हैं, उनको पूरे पैन इंडिया का टेस्ट आपको गली गली में सब जगह मिलने लगेगा। तो ये इम्पैक्ट आया है। और आप जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, फूड वेंडर्स हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं रेस्टोरेंट ओनर्स का फाउंडिंग मेम्बर्स भी हूँ, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ रेस्टोरेंट ओनर एसोसिएशन। तो रविंद्रपुरी एक बेल्ट है, काशी कॉरिडोर, जो विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर्स में बहुत सारे फूड के चैनल्स आ रहे हैं, और आपके रुद्राक्ष हैं, पार्क्स हैं, हब्स हैं, जहाँ भी मतलब पब्लिक की गैदरिंग है, वहाँ पे अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ फूड परोसे जा रहे हैं और लोग उसको लजीज व्यंजनों को लुत्फ उठा के खा रहे हैं। पूरे बनारस में लोग आके पूरे दुनिया के स्वाद को चख के जा रहे हैं। जी, सो ऑफ कोर्स बनारस व्यूअर्स इज़ नोन फॉर इट्स फूड, जैसा कि रोहित जी ने कहा कि जाना जाता है अपने चाट के लिए। पर एक और चीज़ है वे जनेंद्र जी देन कम्स इन। जनेंद्र जी, ऑफ कोर्स बनारस हैज़ ऑलवेज बिन अ टूरिज्म हब, but if you can explain to our viewers the impact that the development of the Kashi Vishwanath corridor has had on the tourism sector specifically, and how many employment opportunities has that created for local guides, because today there is a need for very well educated people who actually understand the history to go around and explain the significance of a place. So how has that impacted your tourism sector, sir? On this point, my submission is keeping this demand in mind. Recently the Ministry of Tourism, Government of India, has launched a special program, IITFC, which is the full form is Incredible India Tourist Facilitator Program, and that is to educate a big number of people up to a certain level so that they could provide their services with a good amount of knowledge which should be authentic. And in last few years, I would like to give you an example of, from my period, used to be 70 to 80 tour guides in Varanasi, but recently after the Kashi Vishwanath corridor, since it has been launched, and a big demand, guides, restaurants, hotels, we have a lot of crisis of rooms in the hotel on certain dates. But especially coming back to the topic of guides, we still have a lot of need of guides, especially to cater the services of the Indian tourists. We have a good number of foreign speaking guides. Even myself, I speak Spanish, Russian, apart from English and Hindi, and we have a good number of foreign language speaking guides. But post COVID-19 and post the corridor launching, it has made us think back about our own potential of India, huge potential, because earlier most of travel agents and tour operators who were serving for the inbound tourists, who are the foreign international tourists. So what you're saying is that earlier there was a lot of fascination amongst foreigners specifically
to come to Varanasi, but post COVID-19 and also because of the sort of focus that has been put on the development of the Kashi corridor, a lot of Indians also now want to come in large and large numbers to not just, of course, visit the corridor and the temple, but to understand Banaras as a whole. So this has made us think of our own potential, the huge potential, Yes. which was overlooked by us. We were all engaged in doing the inbound tourism. Now, after COVID-19, why I'm saying this, because all the international flights were shut. The entire international market of tourism was closed, and then people were just jobless. Meantime, a new hope came among us, the launching of Kashi Vishwanath corridor, and the huge like a wave of Indian tourists started coming with a lot of potential. I give you example that one of the most expensive hotels in Varanasi, which is Brijrama Palace, the price is almost, the best room if I say, would be like 80 to 90,000 rupees one night. And if you will check there, sometimes it is just sold out. And who are the people staying there? These are the Yes. Indian tourists. So they all need somebody to help them, to show them around. And there is a huge scope of tour guides to work as a tour guide in Varanasi. एब्सोल्युटली। धनंजय जी, आप पे वापस आएंगे। मैं समझना चाहूँगी कि कॉरिडोर से मंदिर जो है उसमें अब कितने लोग आ पाते हैं, पहले कितने आते थे आपके हिसाब से, लगभग अगर आप हमें बता पाएँ। और कॉरिडोर बनने के बाद क्योंकि जगह बढ़ गई तो अब कितने लोग आ पाते हैं और बाबा के दर्शन कर पाते हैं? अब इसमें लाखों की भीड़ होती है। और पहले जैसे गलियां होती थी, गलियों में परेशानियां होती थी। जब से कॉरिडोर बना है, जितने भी भीड़ आ जाए, लाखों की संख्या में भीड़ आती है और सारे लोग सिस्टमेटिक ढंग से बाबा का दर्शन करते हैं और आनंद को प्राप्त करते हैं। पहले इसी 2023 में ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने करीब 68 लाख रुपए के माला फूल का विक्रय हुआ पिछले सावन लास्ट सोमवार में। तो कभी ऐसा होता नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अक्षय तृतीया के दिन हमारे परशुराम जयंती मनाई जाती है। जो भी फेस्टिवल हमारे भारत में है जो परंपरागत होती है उसमें कॉरिडोर में मनाई जाती हैं और कार्यक्रम को किया जाता है, जिससे एक पूरे विश्व में मैसेज जाता है, संदेश जाता है कि हम अपने जीवन को किस तरह से जिएं, मैं अपने संस्कृतियों को कैसे जानूं। और बाबा की जो महत्ता है और बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ेगी। बाबा की ऐसी कृपा है। काशी जो है बाबा की नगरी है और साथ में माता अन्नपूर्णा है, बाबा काल भैरव हैं। सबकी कृपा बरसती है, सभी भक्तों पर बरसती है। और जो भी यहाँ आते हैं काशी में, और काशी के हो के रह जाते हैं। ये बाबा की ऐसी कृपा है। तो धनंजय जी, ऐसे क्या सिस्टम्स लाए गए हैं जो आप बता रहे थे, अगर थोड़ा सा और बता पाए हमें कि ऐसे क्या सिस्टम्स आए हैं अब जिसकी वजह से जो आप कह रहे हैं एक सिस्टम बन गया है कि सबको दर्शन करने का मौका मिल सकता है? जी, जैसे आप दर्शन करना चाहती हैं तो सुगम दर्शन है। आपके पास समय नहीं है और आप जल्दी दर्शन करना चाहती हैं तो उसका टिकट लगते हैं, 300 रुपये का पेड टिकट लगते हैं और आप सुगम दर्शन कर सकती हैं। और सामान्य दर्शन 4 गेट हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। उसमें आपके फोर्थ गेट से जो है आपकी एंट्री होती है सुगम दर्शन के लिए, जो आप पेड दर्शन मतलब पेड करके 300 रुपया पेड करती हैं और सुगम दर्शन करती हैं। ऑन पेड दर्शन होता है निःशुल्क दर्शन, उसमें भी आप सुबह से लेकर के रात्रि 11 बजे तक शयन आरती तक, मंगला आरती की बाद से सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि 11 बजे तक आप आराम से दर्शन कर सकती हैं निःशुल्क। Okay, I want to also bring up another aspect. Let me go back to Mr. Dhanuka. Dhanuka ji, I just want to understand from you, क्योंकि अब काफ़ी systems आ गए हैं, there are a lot of systems in place as Dhananjay ji was also explaining. Do you think that there has been then a focus on making Kashi more tourist friendly in terms of also safety? Do you feel that there's been some focus on that, given that the city does stay up the entire night? जिस प्रकार बनारस का टूरिज़्म और बढ़ने की बात है, अगर और बढ़ाया जाए कि जितने भी दर्शनार्थी या टूरिज़्म आते हैं वो यहाँ पे क्या पसंद करते हैं और वो क्या चाहते हैं, उनको आए हुए टूरिस्ट को बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। उसके बाद उस टूरिस्ट का मन होता है कि जहाँ पे यहाँ पे बनारस में संकट मोचन मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर या फिर वहाँ विंध्याचल माई का मंदिर। तो इस तरह से धीरे धीरे और मंदिरों का विकास, जैसे कि भैरवनाथ जी का मंदिर बढ़ता जा रहा है। तो उनकी मैं सोचता हूँ जहाँ तक कि इसमें और इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं और ये इम्प्रूवमेंट होने से काशी का विकास टूरिज़्म और बढ़ेगा।
Okay, Rohit ji, I just want to understand from you, sir. Do you feel that the present government under Prime Minister Narendra Modi has shown more of a keenness to develop Kashi compared to previous regimes? Sure, our PM have done this. Our beloved PM have done this. Every time he is saying that काशी को ही बढ़ाना है. और मैं आपको बताऊं कि जो रेस्टोरेंट ऐसे होते थे जो दिन भर में सोचते थे कि हमारे यहाँ कुछ कस्टमर्स आ जाएं और हमारे स्टाफ के खर्चे निकल जाएं, आज वो जितने भी गेस्ट आते हैं उनको शायद वो केटर भी नहीं कर पाते हैं और उनके यहाँ वेटिंग लगी रहती है और उनको वेट कराना पड़ता है अपने गेस्ट को, अपने टूरिस्ट को, अपने क्लाइंट्स को कि भैया आप रुके रहो थोड़ी देर, ये टेबल खाली होता है तो हम करते हैं. ये सिर्फ और सिर्फ ये 10 सालों में देखने को मिला है. ये हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है कि ये इतना अंतर आया है. बनारस में इतनी फुटफॉल बढ़ी है कि उसकी वजह से सारे रेस्टोरेंट फुल रहते हैं और ओवर पैक्ड रहते हैं. कुछ रेस्टोरेंट तो ऐसे हैं जो 24 आवर सर्विस देते हैं कि हमारे जो बाहर के गेस्ट आ रहे हैं बनारस में दर्शन करने के लिए बाबा विश्वनाथ में या काशी को देखने के लिए, इस बदली हुई काशी को, तो वो ये कह सकें कि उनको रात में भी अगर भोजन की आवश्यकता है, ट्रेन से उतरे तो उनको वहाँ भी उपलब्ध कराया जाए. तो बहुत सारे रेस्टोरेंट 24 घंटे रन कर रहे हैं. Okay, Jainendra ji, same question to you, sir. I just want to understand, do you feel that there was more of a focus, ज़्यादा focus था काशी को develop करने के लिए under Prime Minister Narendra Modi? Well, this question, in my opinion, has two sides. One is all this development work we have been talking about. It's all fantastic. A tremendous work has been done. The other side is that the work which is still yet need to be done. Yes. Yeah, because since we have discussed about how the Kashi Vishwanath corridor launching attracted huge number, like unprecedented number of tourists, especially from India, and now we are struggling on some stage for a good infrastructure in terms of like people coming to Varanasi. We have to recheck the infrastructure of toilet facilities for everybody. We have to check the proper parking facilities for everybody who's driving to Varanasi. There are certain areas like Godaulia, which is like the main downtown of Varanasi. Yes. It must be completely restricted for any kind of vehicle and should be left for pedestrians so that the pilgrims or the tourists, Indians or foreigners, smoothly and easily they could walk down to the main ghat, the Sasmed, and some other ghats also. So, Okay. So my point is, yeah, of course, in last 10 years, a lot of work has been done, but there are a lot still to be done yet. Okay, Jainendra ji, I just also want to understand from you, do you think that there is a change then also in the way people perceive Varanasi today? या Yeah. जब आप लोगों से बात करते हैं, टूरिस्ट से बात करते हैं, चाहे वो इंडियन हो, फॉरेनर्स हो, कहीं लगता है कि एक परसेप्शन में बदलाव आया है? Yeah, I do agree with this. All the change has changed the perception of people also, and this has not been done just over a night. In last 10 years, so many things has happened. For an example, when our Prime Minister invites the Japanese Prime Minister, Mr. Shinzo Abe, it draws the attention of the entire world. When he Yes. invites the French President, Mr. Manuel, he invites the German Prime Minister, and not only these individual invitations, somehow he managed to bring G20 meetings in Varanasi. I think if I am not wrong, there are 5 to 6 meetings happened in Varanasi. Yes. And because of them, there was a lot of infrastructural development in many tourist places, including Sarnath if you'll go. And that has accelerated the infrastructural work going on in Varanasi. And that entire change has changed the perception of people. Okay. That this is the change, and the change cannot like happen in the next life. You need to wait. Yes. Within your life, you can witness the change if there is a strong willpower of our political leaders in Okay, India. Gauri Shankar ji, coming back to you, sir. I just want to understand from you, same question. Do you feel that there is a change in the way people are perceiving Kashi today? जब आप लोगों से बात करते हैं वही, ये सब perception का मामला है, तभी मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप लोगों से बात करते हैं तो क्या कोई चेंज है जो कोई 5 साल पहले आया था अब आता है तो वो नोटिस करते हैं कि अच्छा काफ़ी बदल गया है? एकदम सही बात है. पहले मैं बनारस का ही हूँ, मैं तो मेरी बर्थ यहीं पे हुई थी. तो पहले के बनारस में पब्लिक और दर्शनार्थी और टूरिस्ट की बात तो छोड़ दीजिए, मैं खुद बताता हूँ कि पहले का बनारस
वो ये बनारस एक्चुअल में ये बनारस बनारस लगता है। पहले बनारस बनारस लगता ही नहीं था, खाली नाम था। और अब बनारस में जो भी टूरिस्ट आता है वो अपने तो आते हैं, बाद में अपनी पूरी फैमिली को, अपने फ्रेंड सर्किल को और अपने समाज को सबको भेजते हैं कि जाइए काशी में देख के आइए कि काशी का क्या बदलाव हुआ है। मैं खुद समझता हूँ कि काशी का बदलाव इस स्तर तक हो चुका है कि मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि यहाँ पे ऐसे बदलाव भी हो सकते हैं। सड़क देखिए, मंदिर देखिए, रास्ते देखिए, सुरक्षा देखिए, व्यापार देखिए, हर जगह हर तरफ बदलाव ही बदलाव। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझसे लोग बोलते हैं आपका बनारस आना है मुझे एक बार, आपके बनारस आना है मुझे एक बार, दर्शन करना है, काशी देखना है, बनारस देखना है, गंगा देखनी है। तो ये बहुत अच्छा विनिमय और बहुत अच्छा चेंज देखने मुझे मिला है जो मैं अपनी लाइफ में देख रहा हूँ। Okay, Rohit ji, same question to you. I just want to understand from you. Do you feel that there is a perceptorial change around Varanasi, Banaras? बिल्कुल बदला है। पहले बनारस में लोग कहते थे कि बहुत गंदगी हुआ करती है, गली गली में गाय गोबर करती है, बहुत कचरा है, गड्ढों में बनारस बसता है, ऐसा परसेप्शन था। लेकिन अब लोगों का परसेप्शन ऐसा हो गया है कि जिन गली में वो जाना नहीं चाहते थे, आज वो जब आते हैं तो अपनी आइटनरी में ये लगा के आते हैं कि मुझे इस चाट वाले के यहाँ जाके चाट खानी है, इनके यहाँ कचौड़ी खानी है और वहाँ पे जाके उस गली में चाय पीनी है। Right. तो वो अपने ट्रेवल आइटनरी में इसको ऐड करते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू इन द वाराणसी। तो ये बहुत बड़ा परसेप्शन चेंज आया है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अब्रॉड भी रहते हैं और वाराणसी से बाहर रहते हैं, मेरे साथ पढ़े थे, उनका परसेप्शन था अरे यार बनारस में क्या रखा है, तुम बनारस में क्या करते हो, तुम आ जाओ दिल्ली नोएडा यहाँ पे। तो अब वो कहते हैं नहीं यार, अब तो लगता है कि हम लोग बॉर्न एंड बॉटअप यहीं पे हैं, कहीं और सेटल हो गए तो सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और हम अपने घर के आसपास रहें, लोगों से मिलते जुलते रहें और सारा विकास भी हो रहा है, तो उनका परसेप्शन है कि हम यहीं रहें। So do you feel that there is a sense of pride also that has returned to the residents of Banaras? Obviously, there is a pride feeling that we belongs to Varanasi and we are having a PM from Varanasi. This is also a pride moment for all the Varanasi citizens. उनके लिए भी ये गर्व का वो है, विषय है कि हमारे सब लोग सांसद चुनते हैं, हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं जी। तो ये बनारस वासियों के लिए तो हमको लगता है गर्व की बात है ही। Okay, all right. I have a last few couple of minutes left in this very interesting conversation because these are, like I said, residents of Varanasi. So there's no better voice than them to understand the change. But Janendra ji, you've already shed some light on what transformations you want to expect next. Is there anything you'd like to add to that? काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, पर अब नेक्स्ट फेज जो होगा उसमें आप क्या देखना चाहेंगे? Well, there are certain small things. They are not big things, but sometimes they play major roles. As previously I have mentioned that we still have a shortage of good, clean toilets, especially for foreign tourists. Suppose they leave from the hotel for some sightseeing, going to city tour, visiting some temples, Yes. and then maybe a lady from the group needs to go to a restroom. Unfortunately, we don't have so far that level because Okay. they are not Indian, so they can't easily manage. So that parking, always I raise these issues in all the meetings. Yes. That we have developed a lot, but still we are struggling for enough spaces for parking. Okay. So there should be a proper regulation that at least the new buildings must have at least 1 or 2 layers of basement parkings, so that people can easily drive and park their cars, and the people who are pedestrian, they don't suffer through this. Yes. Yes, yeah. absolutely. Very, very important, pertinent points raised there. I just have 1 last minute left. Gauri Shankar ji, 30 seconds to you, sir. What would you like to see in terms of the change and transformation? देखिए, काशी के चेंज जब तक आती रहेगी तब तक काशी का विकास बढ़ता रहेगा और हर आदमी चाहता है कि जो देख के गए हैं उससे ज़्यादा देखें। तो चेंज ही और हो भी रहा है काफ़ी। हमारे मोदी जी, हम लोग को तो रोज़ नया कुछ सुनने मिलता है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि केबल कार जो चालू हो रही है जी। और पूरे बनारस में, ये भी पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ा विषय है कि आप हर जगह केबल कार से जा सकते हैं वायर के थ्रू ऊपर। तो और ये सब चेंजेज होते रहेंगे तो बहुत अच्छा विकास होता रहेगा और टूरिज्म बढ़ता रहेगा। ये बहुत ज़रूरी होते रहने से। Okay, Rohit ji, what is your suggestion as a voter, sir? मेरा सजेशन ये है कि जो मतलब हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा टोटो और ऑटो टूरिस्ट हैं तो उनका भी ज़रूरी है, लेकिन उस पर लगाम लगने की आवश्यकता है कि प्रशासन इसकी चिंता करे कि हम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कर दे रहे हैं। जो लोग देखने आना भी चाहते हैं वो कभी कभी सोचते हैं कि अरे यार बहुत ट्रैफिक है, इतनी देर में अगर हम कहीं पहुंचते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे भी थोड़ा वर्क होना चाहिए, रोड चौड़ी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन पे सबसे महत्वपूर्ण है जो काम होना चाहिए और
मेट्रो अगर कहीं से भी पॉसिबिलिटीज़ हो, सिटी के अंदर नहीं जा पा रही हो, पुराना शहर है इसलिए, लेकिन आउटर स्कर्ट्स में तो आपको मेट्रो का जाल फैलाना ही पड़ेगा। बनारस Okay. में इतनी क्राउड हो गई है। वेरी इंटरेस्टिंग। धनंजय जी, आई लीव द लास्ट वर्ड विद यू। आप बताइए, आपके हिसाब से अब नेक्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट में क्या फोकस होना चाहिए? काशी में भैया ने बताया कि मेट्रो होना चाहिए, और अभी मोदी जी का प्रोजेक्ट भी चल रहा है वो ड्रोन वाली। आप सीधे वाराणसी कैंट स्टेशन पे बैठेंगे और सीधे बाबा के दरबार में आपकी पदार्पण होगा, आप बाबा का दर्शन करेंगे। जी। नेक्स्ट फेज में आपको दिख रहा है, पहले जो गलियां होती थी, ऊंचे खाबड़ रोड होते थे, अब प्लेन रोड हैं। जो भी काशी आते हैं या जो काशी वाले हैं उनको अनुभूति होती है, और एक बार अगर काशी आ जाए तो उनका बार बार मन करता है कि मैं काशी जाऊं। जी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे बहुत से जमान हैं जो आते हैं बाहर होटल में रुकने के लिए। एक होटल क्या 4-4 5-5 होटल आदमी पता करता है, सारे फुल होटल चल रहे हैं। तो जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उस राम मंदिर के निर्माण की वजह से इतनी काफ़ी दर्शनार्थी और टूरिस्ट आ रहे हैं हमारे काशी में, जो काशी की महत्ता बढ़ रही है। और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और काशी का दोनों का जो है कनेक्शन एक हो गया है। बाबा की ऐसी कृपा है, और हमारे नरेंद्र मोदी जी की सब बाबा ने कृपा रखी है, और आगे खूब विकास होगा, हमारे काशी का खूब नाम रोशन होगा। Well, thank you so much. That's all the time that I have. But stay tuned. It's a very breezy evening here at the Namo Ghat, and it's been a very nice conversation with the residents of Varanasi. But we're coming up on the other side with a slightly more heated debate. Stay tuned.